السلام علیکم جی، ایم وائی کے نیوز کے ساتھ میں شہزاد نواز۔ اس وقت میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر موجود ہوں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی 8 مارچ کو عورت مارچ منعقد کیا جا رہا ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماحولیات، جمہوریت، عدلیہ اور مختلف قسم کے جو ہے وہ جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ جمہوریت کا جنازہ نکلنے ہی والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ عدلیہ کا جنازہ بھی نکلنے والا ہے۔ تو عورت مارچ میں جو ہے وہ 4 5 جنازے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کی جانب سے جو ہے وہ مختلف قسم کے پلے کارڈز اٹھائے گئے ہیں، جس میں میرا جسم میری مرضی اور ایسے پلے کارڈز ہیں، متنازع پلے کارڈز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ عورت مارچ پہ کافی تنقید بھی کی جاتی ہے۔ تو عورتوں سے پوچھیں گے کہ ان کے ایسے کون سے حقوق ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ 8 مارچ کو آج وہ پریس کلب کے باہر جمع ہوئی ہیں۔ اگر یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جناح ایونیو، وہاں پہ حیا مارچ کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے، اور یہاں پہ عورت مارچ کیا جا رہا ہے کچھ فیمنسٹ عورتوں کی جانب سے۔ تو ان دونوں مارچوں میں بھی جو ہے وہ بڑا تضاد ہے۔ اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے ان عورتوں سے کہ یہ آپس میں مل کے احتجاج کیوں نہیں کرتی، کیوں مارچ کیوں نہیں کرتی۔ عورتوں سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے احتجاج کا، اس مارچ کا کیا مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے پریس کلب کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں، تمام تر راستوں کو خاردار تارے لگا کر بند کیا گیا ہے، اور اس مارچ پہ پابندی لگائی گئی تھی کہ یہ مارچ نہیں ہو سکتے، لیکن باوجود اس کے پھر بھی عورتیں 8 مارچ کو جو ہے وہ بڑی تعداد میں نیشنل پریس کلب کے باہر جمع ہوئی ہیں۔ یہ مختلف قسم کے جنازے اور جنازہ نکلے گا ذرا دھوم سے، یہ وہ والی بات ہے، بڑے دھوم سے جنازے نکالے جا رہے ہیں، عدلیہ کے بھی، جمہوریت کے بھی، اور یہاں پہ کچھ عورتوں سے بھی بات کریں گے۔ اس پہ پابندی بھی لگائی گئی تھی، پولیس بھی یہاں پہ چاروں طرف کھڑی ہے، تو یہ آپ کو کیوں نہیں کک کرنے دیا جا رہا؟ اصل میں دیکھیں، یہ رائٹس کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، اور یہ عالمی طور پر اس کی پوری جدوجہد چل رہی ہے۔ یہاں پہ ان کو خوف اس وجہ سے ہے کہ شاید یہ ان کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں، یا ان کا اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم عورتوں کے حوالے سے سارا کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عورتیں آگے آئیں۔ اس ساری سوسائٹی میں جہاں مرد اتنا آگے آ کے کام کر رہے ہیں، وہاں عورتوں کو بھی جگہ ملے، ان کو بھی اسپیس ملے، وہ بھی اپنے حق کے لیے بات کریں، وہ بھی آگے آئیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہاں پہ مختلف قسم کے پلے کارڈز بھی اٹھائے گئے، میرا جسم میری مرضی، آپ اس پلے کارڈ پہ اتفاق کرتے ہیں؟ اتفاق اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی پر ہماری جو ڈیسیشن میکنگ ہے اس پہ ہمارا حق ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مرد اپنے حقوق کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو عورتیں بھی اس طرح اپنی ذات کے لیے اپنے حقوق خود استعمال کریں۔ میڈم، یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ عورتیں بڑی تعداد میں جمع ہیں، عورت مارچ کیا جا رہا ہے، بیسیکلی بتائیں کون سے ایسے حقوق ہیں جو عورتوں کو نہیں دیا جا رہا ہے پاکستان میں؟ یہ سوال کیسا آپ نے پوچھا ہے؟ سوال یہ پوچھا ہے کہ پاکستان میں کون، سمجھ گئی، لیکن مطلب پاکستان میں کون سے حقوق ہیں جو عورتوں کو ملے ہیں؟ آپ دیکھ لیں نا، یہی میں پوچھ رہا ہوں کون سے نہیں ہے جو دیے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل وومن ڈے ہے، اسی پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 5 عورتیں جمع ہوئی ہے، ہر طرف جو ہے خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، پولیس کے اٹالے کھڑے ہوئے ہیں، نہ ان کو ایجوکیشن ہے، نہ ان کی ہیلتھ ہے، نہ ان کے پاس روزگار کے مواقع ہیں۔ جو عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں، جو کسان عورتیں ہیں، ان کو کہیں پہ وہ ریکگنائز نہیں ہوتی، وہ ان کو جو ہے ایز لیبر نہیں مانا جاتا۔ یہاں پر جو بچیاں ہیں ان کو اٹھا کے ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، جو بچیاں پڑھتی ہیں یونیورسٹیوں میں ان کا اغوا کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، جیسے نمرتا کماری ہے، جیسے نائلہ رند ہے۔ ہر روز ہزاروں خواتین ہیں جو قتل ہو رہی ہیں۔ تو آپ کیسے یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تھوڑے فاصلے پہ جناح ایونیو پہ حیا مارچ بھی کیا جا رہا ہے، وہ بھی عورتیں ہی ہیں، وہ بھی مارچ کر رہی ہیں 8 مارچ کے حوالے سے، تو وہ آپ ان لوگوں کے ساتھ میں آپ لوگ مل کے احتجاج میں مارچ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال آپ حیا مارچ والوں سے پوچھیں۔ یہ بھی جو ہے ایک سازش ہے کہ عورت کو عورت سے ہی لڑایا جاتا ہے، تو انہوں نے عورتیں اکٹھی کر کے، آپ کو کیا لگتا ہے کون سی عورت حق پہ، وہ والی یا یہ والی؟ دونوں اپنے حق پہ ہیں، لیکن یہ بھی ان کو لڑایا جا رہا ہے نا، ان کو برین واش کر کے، ان کو تو وہ تو کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں۔ برین واش تو یہ والی بھی ہو سکتی ہے۔
अब मैं आपसे क्या कहूँ। सवाल पूछे यहाँ पर जो भी अपने हुकूक की बात करता है उनको कहते हैं कि ये बाहर की फंडिंग है, ठीक है। तो भाई आपका तो पूरा मुल्क जो है वो तो इमदाद पे पलता है अमेरिका की। अभी जो इतने लोग आपके अमेरिका से सऊदी से निकल के आ रहे हैं तो वो तो पूरा आपके मुल्क को जो फंडिंग ना मिले तो वो तो IMF से तो वो तो एक दिन नहीं चलेगा। फिर औरतों के हुकूक के हवाले से बात की जा रही है, आप भी इस मार्च में शरीक हुए हैं, औरतों के हुकूक के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो औरतें हैं ये तो बहुत पुरअमन है और बाहया है। आप जब हया मार्च का हवाला दे रहे थे, इनमें बेहयाई आपको कौन सी नजर आ रही है? इनके प्ले कार्ड से हमें बेहयाई नजर आ, कौन सी प्ले कार्ड में आप मुझे बताएं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी और कुछ और भी प्ले कार्ड नहीं, आप कुछ और भी बताएं, आप जो भी आप करना चाहते हैं। बेसिकली ये औरतें मतलब आज़ादी किस से मांगती हैं? पाकिस्तान से मांगती हैं, माशरे से मांगती हैं, अपने लोगों से, अपने खावन से मांगती हैं, किस से मांगती हैं? नहीं, न खावन से मांग रही है ये, इनको हर आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान में जो है ना इनको जो कानूनी विरासत है, आईनी विरासत है, वो इनको दिया जाता है? उस हवाले से तो एक प्ले कार्ड भी नहीं है उनके पास। प्ले कार्ड को छोड़ो यार, तो तुम आज़ादी की बात कर रहे हो ना। तो आज़ादी में जो है ना दूसरी बात ये है कि इनको आपके साथ वाला अफगानिस्तान है, वो कहते हैं हम इस्लामी मुल्क है, उसमें इनको तालीम करने की इजाज़त ही नहीं है, वो आज़ादी नहीं है। ये तो बैन अक़वामी दिन है, बैन अक़वामी दिन है, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। आइन का आर्टिकल है कि एवरीबडी हैज द राइट टू स्पीक एंड डेमोन्स्ट्रेट। तो इनको जो है ना वो क्यों पुलिस वाले रोक रहे हैं? और इनका जो स्पीकर्स के जो सामान है वो उन्होंने वापस। अच्छा ये बताएं, गजा पे, फलस्तीन में, वहाँ पे भी औरतों पे जुल्म और आज शहीद किया गया, ये औरतें उनके लिए तो कभी नहीं निकली। उनके लिए ये जो अरबों अरबी हैं वो क्यों नहीं निकलते, जिनके पास खरबों डॉलर हैं, वो क्यों नहीं निकलते? चाहिए ना। नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं ना, आपसे सवाल करता हूँ कि वो जो इस्लामिक जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके बारे में कोई बात कर सकते हैं? वो क्यों नहीं करते? ट्रम्प जो है ना वो उनको कहते हैं गजा खाली करो और मैं इसमें जो है ना वो क्लब और रेस्टोरेंट और ये बनाऊंगा। उसका जवाब तो दे देना। प्ले कार्ड पे बड़ा एतराज किया जाता है, बड़ी तनकीद की जाती है, क्या कहेंगी आप? कम हो रही है, पहले 2020 में बहुत ज्यादा थी और इस दफा बहुत कम है। अब तो मैंने उठाया हुआ, कोई भी नहीं कह रहा। पहले तो आके लोग देख रहे होते, तो मैं हर साल यही उठाती हूँ। अच्छा। बहुत बेसिक और बुनियादी बात है। हर इंसान एक मुकम्मल इंसान है, उसके जिस्म पे, उसकी सोच पे, उसके ज़िंदगी के फैसलों पे दूसरे लोगों का इख्तियार नहीं होना चाहिए, उसका अपना इख्तियार हो। अच्छा ये बताएं कि औरत को बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, उसको उसके हुकूक मिलने चाहिए, लेकिन औरतें तो वो भी होती हैं जिन पे तशद्दुद जुल्म किया जाता है। बुशरा बीबी जेल में अभी भी, वो भी एक औरत हैं, उनके लिए तो ये ख़वातीन, ये औरतें कभी नहीं निकली। आप जेंडर की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे, हम जेंडर की बेस पे जस्टिस चाहते हैं, हम इनजस्टिस नहीं चाहते। अगर मैं कोई क्राइम करूंगी तो मुझे उसको भुगतना चाहिए वैसे ही जैसे आपको भुगतना चाहिए। हम इक्वालिटी मांग रहे हैं, इक्वालिटी मीन्स राइट्स। राइट्स का मतलब ये नहीं होता कि अब ये तो फिर आप ये भी कहें कि एक खातून ने कत्ल किया क्योंकि खातून ने, तो ठीक है। अगर आप बुशरा बीबी की बात करते हो, उनके साथ अगर कोई नाजायज़ या नारवा सलूक किया जाता है, गलत बात है। वो किसी मर्द के साथ भी किया जाए, गलत बात है। लेकिन जो उनके ऊपर अगर कोई मुकदमा है और उनके वो उसको आप औरत के जो हकूक़ की बात है उसके बीच में मत लाएं। आप दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। लेकिन मैं जब ये चीज़ देखता हूँ कि जमात इस्लामी की कुछ औरतें बाहया पर्दे में निकल के अपने हुकूक़ की मांगती हैं, वो भी औरतें, अगर इन औरतों को देखता हूँ तो ये यहाँ पे कुछ प्ले कार्ड्स, मुतनाज़ प्ले कार्ड्स उठाए होते हैं, ये भी मतलब ये तो खुला तज़ाद नज़र आता है। देखिए, आप पर्दे और हकूक़ को मिक्स किस बुनियाद पे कर रहे हैं? यानी मैं पर्दा करूँगी या नहीं करूँगी, इसका मेरे हकूक़ से क्या ताल्लुक़ है? आप हकूक़ को पर्दे से मुत्तसिल करना चाहते हैं। औरत मिल के क्यों नहीं एहतजाज करती? मैं इस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। वो तो कोई भी दो मतलब तबकात जो है वो मिल के अगर नहीं करे तो इसका मतलब ये तो नहीं, उनके हकूक़ अपनी जगह पे जायज़ हैं। जो अपने हकूक़ वो मांग रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं। हम अपने हकूक़ मांग रहे हैं, अगर हम दो मुख्तलिफ जगह पे खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा
स्टैंस गलत हो गया है। आप इस चीज़ को डाइवर्जन मत समझें। हमारे तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि हम औरत की हकूक़ की बात करें। वो भी कर रहे हैं, अच्छा करें, हम भी करें, अच्छा करें, लेकिन हम आप लोग मिलकर भी कर लें, कोई इसमें इतने अरसे से आप लोग ये हुकूक मांग रही हैं, आपको लग रहा है कि इससे आपको फ़ायदा होता है, हुकूक मिल रहे हैं? आप हकूक़ मिलते हैं जब जहन और नज़रियात सुधरते हैं, जब अवेयरनेस आती है, जब हम बात करते हैं, मार्च करते हैं, लोग सोचते हैं क्या मसला है, ये क्या है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आज इस प्लेकार्ड पे एतराज़ कम है पहले की निस्बत, तो सोच में तब्दीली आ रही है, और सोच में तब्दीली आती है तो बिहेवियर में तब्दीली आती है, जगह बनती है उन तबकात की जिनके हकूक़ सल्ब किए जा रहे होते हैं सोसाइटी में। मैडम, आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कुछ औरतें जो है वो, आप माशाल्लाह अच्छा बोलती हैं, और कुछ औरतें अपनी मर्ज़ी के सवाल सुनना चाहती हैं कि हम ये पूछेंगे तो जवाब देंगे, ये पूछेंगे तो नहीं जवाब देंगे। तो ये तो फिर मतलब कि एक किस्म की अपनी मीडिया की आज़ादी की भी बात करती हैं, तो ये तो आज़ादी तो ना हुई ना फिर अपनी मर्ज़ी के आप जब आप एक इंडिविजुअल को एक नज़रिए के साथ जाके खड़ा करते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। यानी अगर मैं नज़रियाती तौर पे एक बात कर रही हूँ, कोई दूसरी बंदी है, उसका मिजाज है, वो चाहती ही नहीं है कि आप वो बात उससे करें, तो ये भी कोई मीडिया की आज़ादी नहीं है कि आप उसको कहें नहीं आप जवाब ही देंगे। सवाल की इज़्ज़त, सवाल की हुर्मत अपनी जगह है, लेकिन एक जो इंडिविजुअल चॉइस और एक शख्सी आज़ादी है ना, वो भी अहम है। और ये सहाफ़त की आज़ादी इसीलिए है ताकि शख्सी आज़ादी को हम इंश्योर कर सकें। आपको लगता है ये सारी ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से आई हुई हैं? मेरे यहाँ मर्दों से पूछ लें, शायद सब मर्जी से ना आए, औरतें तो सारी मर्जी से ही तकरीबन आई होंगी, ऐसे मेरा अंदाज़ा है। तो ये बताइए, पापू का इस मुफ्ती तारक मसूद साहब के साथ क्या ताल्लुक है? पापो एक कानून है, पब्लिक असम्बली एंड पीस ऑर्डिनेंस, जिसको इस्लामाबाद में पिछले अरसे में लागू किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर तमाम एहतजाजात पे और तमाम अपनी अरादी राय पे पाबंदी लगा दी गई है। आज भी औरत मार्च को एनओसी नहीं दिया गया। इसी तरह जितने भी एहतजाजात यहाँ पे शहर में होते हैं उनको अब एनओसी नहीं दिया जा रहा, उनको बोला जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे एहतजाज करेंगे तो आपको जेलों में डाला जाएगा, आप पे लाठीचार्ज किया जाएगा और आपको मारा जाएगा। और तलबा पे तो इस हद तक ये जुल्म है कि अगर कोई तालिब इल्म एहतजाज में आता है, किसी में शिरकत करता है, तो उसको ये धमकी दी गई है और ये कानून पास किया गया है कि उसको यूनिवर्सिटी से सीधा बगैर डिग्री के निकाल दिया जाएगा और उसको दोबारा जो है दाखिले की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। नहीं, लेकिन तो इस तरह की कवानीन जब हम देखते हैं तो ये कानून हमेशा जाके जो तरक्की पसंद लोग होते हैं, चाहे वो फेमिनिस्ट हों, चाहे वो बलोच सवाल पे आवाज़ उठाने वाले लोग हों, चाहे वो पश्तून लोगों के साथ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हों, सिर्फ उन पे इनका इतलाक किया जाता है। कभी भी आपको इनका इतलाक मजहबी दाएं बाजू की तंजीमों पे नहीं मिलेगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हर रोज़ हर तीसरे हफ्ते जमीयत ने दंगा फसाद किया होता है, वहाँ पे वो लोगों को मारते हैं और वो खुले आम एहतजाजात भी करते हैं, वो कैंपस में अपनी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, उन पे कभी इस कानून का इतलाक नहीं हुआ। इसी तरह तहरीक लब्बैक पे, इस तरह की दीगर पार्टियों पे जिनका एजेंडा नफरत फैलाना है और समाज में लोगों को मारना और अक़लियतों के खिलाफ नफरत और जो दूसरे फिरके हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाना है, उन पे इस तरह के कवानीन का इतलाक नहीं किया जाता। इस तरह के कवानीन को सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए, बलोचों के लिए, पश्तूनों के लिए, मजलूम लोगों के लिए रखा जाता है, जो अपने ताकि वो अपने खिलाफ होने वाले जुल्म पे आवाज़ ना उठा सकें।